दास जगह दे उत्ते जदों खड़ा होवे तुहाडे पवित्र आत्मा दी जीवन हर बंधन टूट जाए यीशु दे नाम दे विच हालेलुया 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 हालेलुया। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਮਸੀਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम जो विषय सीखेंगे रहूबियाम के बारे में, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का हमसे क्या संबंध है और हमसे क्या लेना देना है और उसने कौन सी गलतियां की। तो ये विषय 25 अप्रैल 2021 का इस कलीसिया के लिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया गया है। आज परमेश्वर ने कृपा दिया, फजल दिया और प्रभु के दास ने अपनी कलीसिया में प्रवेश करने की अनुमति दी। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ, पवित्र आत्मा का आभारी हूँ कि आपके बीच में ये वचन बांटने का मौका मिला। तो सभी से विनती है एक अनुशासन के साथ वचन सीखें। दूसरा इतिहास 10 अध्याय 1 वचन। रहबुआम शकम ਨੂੰ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ। हाँ, हिंदी में मैं पढ़ना चाहूँगा। रहूबियाम सिकेम को गया क्योंकि सारे इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। यहाँ पर रहूबियाम को सारे इजरायली राजा बनाने के लिए गए, लेकिन किसी ने रहूबियाम को न्योता नहीं दिया, इनविटेशन नहीं दिया, बुलावा नहीं दिया। रहूबियाम अपने आप जा रहा है। रहूबियाम क्या कर रहा है? अपने आप जा रहा है। हाँ जी, 2 वचन। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ये किसका पुत्र है? नाबाद का पुत्र यरोबाम ने यह सुना। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ रहूबियाम इसका पुत्र नहीं है। रहूबियाम अलग है, ध्यान दे के रखना। जब नाबाद के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं, वह तो मिस्र में रहता था। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ जी, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी, ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ। हाँ, हिंदी में जब नाबाद के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, वह तो मिस्र में रहता था जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र
से लौट आया। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਸੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰਹਿਬੁਆਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। हाँ, अब यहाँ पे इसका इतिहास क्या है? भेजा, अतः यारोबाम और सब इजरायली आकर रहूबियाम से कहने लगे। किससे कहने लगे? रहूबियाम से कहने लगे। हाँ जी, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੂਆ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਔਖੀ ਟਹਿਲ। अभी ध्यान दे, इधर ध्यान दे। ये जो नाबाद का पुत्र यरोबाम, ये मिस्र में रहता था, और जहां वह यानी कि यरोबाम सुलेमान के डर के मारे भाग गया था, अब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यरोबाम और सब इजरायली आकर रहूबियाम से कहने लगे। वो एक विनती लेके आ रहे हैं। क्या विनती लेके आ रहे हैं? 3 और 4 वचन पढ़े। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੂਆ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, हाँ जी, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਔਖੀ ਟਹਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਰੀ ਜੂਏ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी। तो ये एक विनती लेके आए हैं। किसके सामने? रहूबियाम के सामने। रहूबियाम बेटा है सुलेमान का, और यरोबाम सुलेमान के डर के मारे भाग गया था, मिस्र में रहता था। फिर इनके पास बुलवा भेजा। फिर यरोबाम और सब इजरायली आकर एक विनती लेके आए। किसके पास? रहूबियाम के पास, कि आपके पिता सुलेमान ने हमारे ऊपर जो बोझ डाला था उसको थोड़ा हल्का कर दो। तो आज जब परमेश्वर का सही वचन कलीसिया में आता है, तो उस समय जब मत्ती 7 का 13 के अनुसार का वचन कलीसिया में आता है, तंग है वह रास्ता, भीड़ा है वह द्वार, सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग को पहुंचता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो कलीसिया में कईयों को बोझ लगता है, वो उसको समझते हैं कि ये बोझ है। नहीं, सुलेमान ने भी अपनी रीति से नियमों कानूनों के तहत अपने साम्राज्य को चलाया, लेकिन अभी जब इसका वंश आया है, इसका जो पुत्र आया है, रहूबियाम आया है, ये किस रीति से अभी राज्य चलाएगा, और ये अपनी मर्जी से क्या बना है। यहां लिखा है रहूबियाम शेकेम को गया, क्योंकि सारे इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। तो आज हमने अपना चाल चलन भी देखना है। जब परमेश्वर ने सही तालीम और सही उपदेश में जो खड़े हुए अगुओं को एक कलीसिया में इस मकसद से परमेश्वर भेजता है कि इस कलीसिया की नींव सिय्योन के कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मजबूत हो जाए। ये कलीसिया अब्दी चट्टान के ऊपर अपना आत्मिक घर बना ले। ये कलीसिया कहीं रेत के ऊपर घर ना बनाए। समय आने पे आंधियां आए, तूफान आए, जीवन में समस्याएं आई, विपत्तियां आई, मुसीबतें आई, तो फिर क्या होता है? रेत के ऊपर बना घर क्या होता है? गिर जाता है। अब्दी चट्टान के ऊपर बना घर क्या? खड़ा रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी अंजीलों में इनका वर्णन किया है। तो यहां अपनी मर्जी से राजा बनने की इच्छा लेकर के रहूबियाम गया, क्योंकि सब इजरायलियों ने उसको राजा बनाने की ठानी। अब इसके पास से विनती लेकर के आए हैं कि उस बोझ को हल्का करें। 5 वचन भी पढ़ें। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। 3 दिन का समय लिया राजा रहूबियाम ने। इस विषय को आपके बीच में साझा करने का कितना समय हो गया? 22 अप्रैल 2021 से लेकर अभी 2022 शुरू, जनवरी 2022। तो कितना घाटा, कितना एक समय हमारा बीत गया, जो वापस आना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बीता हुआ कल आना नहीं है। हालेलुया। 3 दिन का समय लिया रहूबियाम ने। अब 6 वचन पढ़ें। ਤਦ ਰਹਿਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। हाँ, कहाँ तक पढ़ा? हाँ, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे यह कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करे। अब यहाँ पे देखने में आता है बुजुर्ग एक सलाह दे रहे हैं और एक नौजवान सलाह दे रहे हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त दासों की सलाह और अपनी मर्जी से आजादी के तौर पे और थोड़ा सा वचन का ज्ञान लेने के कारण अपनी मर्जी के अनुसार बने हुए सेवकों की सेवकाई की सलाह और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अभिषिक्त तीसरे स्वर्ग से ऑर्डेन किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगाए हुए प्रभु के दासों की सलाह में बहुत अंतर होता है। हालेलुया। अब बुजुर्गों की सलाह यहाँ पे क्या आ रही है? अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहें तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। हालेलुया। ये बुजुर्गों की सलाह आई, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त दासों की सलाह आई कि आप लोग, यहोशू 1:8 क्या कहता है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना हो, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। वो प्रभु के द्वारा नियुक्त दास लोग आपको हमेशा कुछ देने के लिए आएंगे, आत्मिक भोजन देने के लिए आएंगे, आत्मिक मन्ना देने के लिए आएंगे और आशीष देने के लिए आएंगे। हालेलुया। और वो प्रभु बढ़े हम घटे इस भावना से आएंगे। वो कलीसिया की उसारी करने के लिए आएंगे, वो कलीसिया की तरक्की को देख करके खुश होंगे। कौन सी कलीसिया? जब सिय्योन के कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है तो उसके ऊपर नबियों और प्रेरितों का खून बहा है। एक एक पत्थर के ऊपर क्या है? बलिदान है, समर्पण है। उस रीति से अगर कलीसिया बन रही है, उस कलीसिया को देख करके वो खुश होंगे। हालेलुया। आगे जो सलाह आ रही है 8 वचन पढ़ें। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੂਏ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰੋ, ਇਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੂਆ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜੂਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਿਆ ਸੀ ਪਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विशु कोटलियां नाल फंडांगा। हाँ, यहाँ जवानों की सलाह के बारे में भी आपको देखने को मिला। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। हालेलुया। तो आप हर एक को जिसके हाथ में पवित्र शास्त्र है प्रभु का दास मान के अगर चल रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा एक आने वाला आत्मिक धोखा है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब तक भीड़ को 5-5 हजार की भीड़ को खिलाया पिलाया, उनको बहुत ही आशीष में बरकत वाला प्रचार किया, तब भीड़ जयकारे लगाते हुए होशना करते करते होशना होशना यरूशलेम में प्रवेश कराया। लेकिन जब समय आया सही उपदेश का, सब भीड़ छोड़ के चली गई। 12 प्रेरित बचे, उनको भी प्रभु ने कहा तुम भी जा सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु हम कहां जाएं, अनंत काल की बातें तो आपके पास है, हम कहां जाएं। तो यहां पर जवानों की जो सलाह आ रही है, इसी रीति से आज वर्तमान जमाने में कितने प्रभु के दास लोग हैं जो आत्मिक जवानी की हालत में नहीं हैं, वो शारीरिक जवानी की हालत में जोश जोश में परमेश्वर का वचन लेकर के गांव गांव में गली गलियों में घूमते हैं
वो भावनाओं की सेवा करते हैं, भावनाओं की सेवा में आकर के उपदेश से भटके हुए हैं। हालेलुया। उनसे पवित्र शास्त्र की 66 किताबों के नाम पूछो नहीं आएंगे, पुराने नियम का अर्थ पूछो नहीं आएंगे, पुराने नियम और नए नियम के बीच में एक जो खाली पेज है उसका क्या अर्थ है उसके विषय में भी उनको कुछ पता नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से लगभग 400 साल बात नहीं की। मलाकी की किताब से लेके मती की किताब तक प्रभु चुप रहा, मनुष्य जाति से बात नहीं की। उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति 6 बाब में लिखा है, उत्पत्ति 6 बाब 5 वचन, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। पंजाबी में पढ़े। उत्पत्ति 6 का 5। फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई और उसके मन दे विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। कितना दिन बुरी रहती है? ध्यान इधर दे। सारा दिन क्या रहती है? क्या रहती है? बुरी भावना। तो परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और समानता दिया। अब रहूबियाम इस रीति से बुजुर्गों की सलाह को कैंसिल करके जवानों की सलाह को मानता है। बोलता मेरे तो 6 उंगलियां हैं, मेरे बाप ने तो कोड़ों से ताड़ना दी, मैं तो बिच्छुओं से भी दूंगा और अधिक ताड़ना दूंगा। तो यह कितना गंभीर विषय है। 12 से 15 भी पढ़े। दूसरा इतिहास 10 का 12 से 15। जिवें पातशाह ने आख्या सी कि तीजे दिन मेरे कोल फिर आना, सो तीजे दिन यारबुआम ते होर सारे लोग रहबुआम दे कोल आए। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਆ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ਲੂਨੀ ਅਹੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ यारबुआम ਨੂੰ आखी थी पूरा करे। हाँ, तो यहां पर जो जवानों की सलाह है उसके ऊपर फैसला सुनाया किसने? रहूबियाम ने। तो परमेश्वर का वचन कहता, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। फिर क्या है? पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सेवक इस वचन के ऊपर फोकस करते हैं। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना ही नहीं है। पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 5:17 14 का 17 पढ़े। एक मिनट। रोमियो 14 का, माफ करना, रोमियो 14 का 17, माफ करना, रोमियो 14 का 17 वचन। क्यों जो परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, सगों पवित्र आत्मा विच शांति अते आनंद है। हाँ, परमेश्वर का बुजुर्ग परमेश्वर के द्वारा अगर नियुक्त किया एक टिकन लेवल का सेवक भी इस वचन के ऊपर ही फोकस करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। कलीसिया का कोई बात नहीं, कलीसिया में दिक्कत है, कोई बात नहीं, हमें अच्छे से खाने पीने को नहीं बोला, लेकिन हमारा ये मकसद है ही नहीं, हमारा ये लक्ष्य है ही नहीं। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है। फिर क्या है? एक बार फिर पढ़े, फिर क्या है? सगों पवित्र आत्मा विच शांति अते आनंद है। पवित्र आत्मा विच शांति है और आनंद है। ये बुजुर्गों की सलाह है, ये परमेश्वर के सेवकों की सलाह है।
अगर हम नामधारी सेवकों की सलाह मानेंगे, नहीं जी। अगर कलीसिया में अच्छा खाना पीना नहीं हुआ तो वचन फिर रोमियो की पत्री स्पष्ट कहती, शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों पे मन लगाता है और आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पे। तो 15 तक आपने पढ़ दिया, वो 15 तक पढ़ दिया? दूसरा इतिहास में हाँ जी, 10 का 15 तक पढ़ दिया ना। तो यहां पर जो जवानों की सलाह है वो राजा रहूबियाम ने मानी और बुजुर्गों की सलाह को क्या किया? रद्द किया। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका 16, 17, 18, 19 तक पढ़ेंगे। जब सारे इस्राएल ने वेख्या कि पातशाह ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। हे ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ हे ਦਾਊਦ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ हाँ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ चला गया। हाँ जी, जब समस्त इजरायलियों ने देखा कि राजा हमारे नहीं सुनता तो सब बोले अब दाऊद के साथ हमारा क्या हिस्सा। अब यहां से बात बिगड़ना शुरू होती है। यहां से इजराइल 2 भागों में बंट जाता है। हालेलुया। यहां से इजरायलियों के अंदर फूट पैदा होती है। और फिर 17 वचन कहता है सब इजरायली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन्हीं पर रहूबियाम राज्य करता रहा। अब इजराइल और यहूदा 2 हिस्सों में हो गया, बट गया, बंटवारा हो गया। तो जब कलीसिया में, ध्यान देना, जब कलीसिया में 5 प्रकार के सेवकाई का प्रकाशन नहीं है तो कलीसिया में समस्याएं आत्मिक रीति के तौर पे आएंगी। आत्मिक समस्याएं, हमने आने वाले समय में आत्मिक जगत में राज्य करना है। हम जिस रीति से शरीर में हैं ये हमारा एक ट्रेनिंग है। इस शरीर में रहते रहते हमारे आत्मा और प्राण को प्रभु यीशु मसीह के ढील ढोल में उसके स्वरूप और समानता में अंश अंश करके बदलना है, उसके समान बनना है और फिर युगानुयुग अपने कर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने क्या करना है? क्या करना है? राज्य करना है। 18, 19 भी पढ़ें। ਤਦ ਰਹਿਬੋਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਦੋਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਰਹਿਬੋਆਮ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਕੀ है। यहूदा और इजराइल 2 अलग अलग गुटों में बट गए, बंटवारा हो गया। इजरायलियों के मनों में रहूबियाम के प्रति नफरत पैदा हो गई। उन्होंने दुख के साथ बोला दाऊद के साथ, यिशै के पुत्र दाऊद के साथ हमारा क्या लेना देना। हो सकता है इस कलीसिया में कोई ये बोले इसके साथ, इस भाई के साथ हमारा क्या लेना देना, इसको यहां ना आने दिया जाए। ऐसा किसी के मन में विचार आ सकता है। विचार का आना कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, इस गांव के विषय में, इस कलीसिया के विषय में जो परमेश्वर ने प्रकाशन मुझे दिया है, योजना मुझे दी है, उसके लिए तो मैं आखिरी सांस तक रोता रहूंगा। आखिरी सांस तक परमेश्वर के चरणों में उसके पूरे होने की बाट जोहता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे प्यारे भारतवर्ष का आखिरी गांव है और इस गांव के प्रति एक योजना है। इस गांव के प्रति, इस कलीसिया के प्रति एक एक से कोई यहाँ पे स्पेयर नहीं है। सबके लिए परमेश्वर के पास क्या है? क्या है? एक योजना है। तो उस योजना को अगर पहचानना है तो वचन प्रार्थना संगति के द्वारा ही वो संभव होता है।
अगर हर एक मनुष्य स्वयं इतना आत्मिक होता कि वो तमाम विषयों के ऊपर प्रकाशन पा लेता, तो फिर परमेश्वर ने 5 प्रकार के सेवकों को क्यों ठहराया? 5 प्रकार के सेवकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जूनियर सेवकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? मूसा भी 32 लाख को संभालते संभालते क्या हुआ? परेशान हो चुका था। उसके ससुर ने क्या कहा? मूसा 1000 के ऊपर, 500 के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर एक लीडर ठहरा, नियुक्त कर। तो पूरे विश्व की कलीसिया एक है। कलीसिया पूरी पृथ्वी को मिला के एक है। अभी हम अलग अलग भागों में, छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं। हालेलुया, अलग अलग जगह पे हैं। एक समय आएगा गुप्त आगमन, जब सारी कलीसिया उठाई जाएगी। बादलों में इकट्ठा होना है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, प्रथम पुनरुत्थान में उठाए जाना है। तो यहां पर इसकी ऐसी नौबत आई, इसको भागना पड़ा रथ पे चढ़ के। इसको, रहूबियाम को अपनी जान बचा के ये क्या हुआ? भागा। तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक के कामों को परखा जाएगा। कब? गुप्त आगमन के बाद पृथ्वी के ऊपर 7 साल का विरोधी मसीह का राज्य होगा, 3.5 साल शांति के, 3.5 साल महाक्लेश के। उन 7 सालों के दौरान क्या होगा? हम मसीह यीशु के, जितने गुप्त आगमन में उठाए गए, मसीह यीशु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्या होंगे? मसीह यीशु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ध्यान इधर दे सभी सिस्टर जी, आप इधर देखो। तो वहां सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम एक एक अपना अपना लेखा देंगे। कौन? एक एक। हमारे बुरे कामों का भी न्याय होगा, हमारे अच्छे कामों का भी न्याय होगा, और आग से हमारा काम परखा जाएगा। किससे? आग से। जिसका काम बना रहा वो इनाम पाएगा, जिसका काम जल गया वो आप बच जाएगा, लेकिन जलते जलते। उसके बाद मुकुट बांटे जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद मेमने की शादी होगी। किसके साथ? कलीसिया के साथ। किसके साथ? दुल्हन के साथ। और पृथ्वी पे क्या हो रहा होगा? महाक्लेश। और ये हकीकत में होगा। परमेश्वर का वचन लिखा है, मती रचित सुसमाचार, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो जो ही 7 साल वहां कंप्लीट, यहां पृथ्वी के 7 सालों में भी काफी कुछ होगा, वो भी विषय लेके सिखाएंगे। प्रभु की मर्जी हुई, प्रभु की गुप्त आगमन में अगर देरी है तो 7 साल यहां के कंप्लीट, तो दूसरी आगमन का होना, परमेश्वर, उसकी कलीसिया, उसके दूत 1000 साल के राज्य के लिए पृथ्वी के सेंटर इज़राइल के यरूशलेम, दाऊद के सिंहासन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। उसके साथ सिंहासनों पर इज़राइल के 12 गोत्रों के 12 सिंहासनों के ऊपर 12 प्रेरित बैठेंगे। वो इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और परमेश्वर की कलीसिया होगी, दुल्हनें होंगी, जो सिद्ध होंगे वो इस पूरी पृथ्वी को कब्जा करेंगे। वो होगा आत्मिक कब्जा करना। कौन सा? आत्मिक। जिसने जहां सेवा की उसको उस भूमि के ऊपर अधिकार दिया जाएगा। आत्मिक रीति से 1000 साल का राज्य होगा, लोहे के राजदंड के साथ होगा। ना कोई चोरी, ना कोई अहिंसा, शांति का राज। 1000 साल का राज्य। ना कोई मिलिट्री, ना कोई पुलिस, ना कोई बॉर्डर पुलिस, कुछ नहीं। ना हथियार, ना गोला, ना बारूद, सब शाकाहारी होंगे। 1000 साल का राज्य, क्योंकि 1000 साल के लिए शैतान को अथाह कुंड के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, पूरी कायनात का पिता है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, जो कभी नहीं बदलता, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है,
वो राज्य करके दिखाएगा। परमेश्वर ने मनुष्यों को राज्य करने के लिए बहुत युग दे दिए। पहला युग, जब तक आदम ने पाप नहीं किया, निष्कलंकता का युग निष्कलंकता का। जब पाप कर दिया, अदन की वाटिका से निकाला गया, विवेक का युग शुरू हुआ। आत्मा में 3 चीजें जो हैं, अंतर्ज्ञान, विवेक और संगति। विवेक का युग खत्म हुआ, तीसरा युग आया, मनुष्य शासन का युग। मनुष्य शासन में राजे महाराजे आए। चौथा युग आया, वायदे का युग। अब्राहम को उर देश से, मेसोपोटामिया से परमेश्वर ने बुलाया, वायदा दिया, कनान देश का वायदा। 5वां युग आया, व्यवस्था का युग, बलियों का युग। और फिर 6वां युग आया, अनुग्रह का युग, जब सारी व्यवस्था को देने वाला खुद देहधारी हुआ। हालेलुया। हमारे पाप और श्रापों को उठाने के लिए वो कुंवारी मरियम के गर्भ में आया। ठीक 750 साल पहले यशायाह नबी को उसी परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी दी, लिख कुंवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, यशायाह 7:14। कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मत्ती 1:23 में वो इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो हमने कौन सी सलाह माननी है? परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए सेवकों की या अपनी मन मर्जी से बने हुए सेवकों की? उनको पवित्र शास्त्र का ए से लेके बी नहीं आता और वो कलीसिया में भेड़ की खाल में भेड़िए के तौर पे घुस आते। हालेलुया। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। आत्माओं की परख की पहचान का वरदान मांगिए। मैं प्रभु के दास से भी विनती करूंगा, आत्माओं की परख का वरदान के लिए बेशक आप भी 40 दिन प्रार्थना कीजिए, जहां पास्टर कर्नैल जी कर रहे हैं। हे प्रभु, इस कलीसिया में आत्मिक वरदान दो, आत्माओं की परख का वरदान हो, कलीसिया में सारे वरदान हो जो कुरिन्थियों की पत्री में दिए गए। हालेलुया। सिर्फ आशीष, बरकत, चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान नहीं हुए। वो बहुत बड़ी एक योजना है, अनंत काल की योजना है। आशीष, बरकत, चंगाई सबसे बड़ी आज से 2020 या 21 साल पहले मिल गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 के द्वारा मिल गई। हालेलुया। और यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने, यानी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरताओं ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह सबसे बड़ी आशीष है। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है जितनों ने विश्वास किया, और विश्वास ही से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। तो फिर और कौन सी आशीष चाहिए? फिलिपियों की पत्री कहती है, 2 अध्याय 5 वचन से जब हम पढ़ते, परमेश्वर होने पर भी उसने अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर तो हम पापियों को बचाने के लिए अपने आप को शून्य कर रहा, और हम क्या कर रहे हैं? ये ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर तो हमारे समान बन गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी कीमत देनी थी। एक मनुष्य ने मरना था, एक मनुष्य ने अपने प्राण को दोष बलि करके देना था, एक मनुष्य ने पूरी मानव जाति के लिए बलिदान होना था, एक मनुष्य ने अपना पवित्र लहू बहाना था। और उस मनुष्य के अंदर कौन सी खूबी होनी चाहिए? आदम ने शरीर में रह के पाप किया, तो शरीर में भी पाप के दंड की सजा होना अनिवार्य था। उस शरीर में क्या खूबियां होनी चाहिए थी? वो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, पवित्र हो, और वो कुंवारी से जन्मा हो। कान खोलकर सुन लो, जिसके कान है आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सवाल पूछने वालों कि कुंवारी से कैसे जन्म हुआ? परमेश्वर वचन में कहता है, परमेश्वर पत्थर से अब्राहम के लिए